Good afternoon, friends. I welcome all of you in the last session of this marathon 2-day seminar on the capital market. And I hope it was the very insightful because we have a chance to listen the stalwart of the capital market industry. We had got the wisdom from all of them. Everybody, capital market is an ocean. So everybody, every vertical has own specialization, own strategy, and we have a chance to listen to all of the stalwarts. And hopefully, since we all are a chartered accountants, so we all will apply as per our interest, own strategy, and in the vertical we operate. So this last session is for the understanding the trend analysis. Since we all know the market is very volatile and it is very imperative to understand the trend analysis of the market. And for that, we have a expert, Mr. Ashish Bohatti from Pune. And I request Mr. Chetan Jagetia, CA Chetan Jagetia, Rohan Mehta to escort the faculty, please. I will request CA Chetan Jagetia, committee member, to felicitate the faculty of the day, faculty of this session. Now I will request CA Tanuj Patel to give the introduction of the faculty. Please, Tanuj. Thank you, Shilpang sir. I am Tanuj Patel. I am the member of Committee on Capital Markets of Ahmedabad branch of ICAI. And now going to the introduction of CA Ashish Baheti sir. So he is the Director of NAV Investment Research Private Limited and Quant Express Technologies Private Limited. He is working in providing algorithm and electronic trading solutions to several hedge funds and proprietary trading desks. In past, he has worked with JP Morgan Bank and JP Capital as an analyst and portfolio manager. He has worked in Singapore and have traded in US, London and Indian markets. He has a total experience of 15 years in the capital markets. As far as the education qualifications are concerned, he is a chartered accountant, a company secretary, an LLB, an AFP, an NSE certified market professional, and he also holds a certification in Python and data science. Moreover, he is also a guest speaker on CNBC, at ICAI, IMA, Rotary, CII, management colleges, and other forums. So now I would request CA Ashish Baheti sir to take forward the session. Good evening, everyone. थैंक यू अहमदाबाद ब्रांच एंड जीतू भाई. मैंने ऑन पर्पस ये लास्ट सेशन लिया. दो रीज़न है. लास्ट सेशंस आर ऑलवेज मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए लास्ट जो सेशन होता है, ट्रेडिंग सेशन मतलब जो लास्ट आवर होता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. और दूसरा जो लास्ट तक खड़ा है मतलब वो सबसे ज़्यादा सिंसियर है ऑडियंस में से, मतलब जो लास्ट तक बैठे हैं. थर्डली मेरी फ़्लाइट है 10 बजे की, तो आई हैव टाइम टिल आई थिंक 8:30. तो अब मेरे को कोई टोकने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है. सो अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि अहमदाबाद के पास कितना बैंडविड्थ है मेरे को यहाँ रोकने का. सो आई एम ऑल योर्स टिल आई थिंक 8. नहीं ज़रूरत नहीं है. अब देखो तो क्या 4 जन भी रुकेंगे तो अपन बोलते रहेंगे. Yes. So data speaks it all. If you can read the data na, it can speak everything. And the best part about data is it tells you the entire story. Okay. So there are 3 types of analysis in the market. One is fundamental analysis, for which we all CAs are expert. Why? Because we are making balance sheet, तो हमसे अच्छा उसको interpret करने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता.
जस्ट बाई सीइंग द बैलेंस शीट वी कैन मेक आउट कि इसमें क्या जगलरी की होगी या इसमें क्या डेकोरेशन हुआ रहेगा. The second type of analysis is technical analysis, which is, I'll say, fairly new. 30-35 साल 40 साल से technical analysis being used. Stock market जब से तब से fundamental analysis use हो रहा है, but 40 साल से आप बोल सकते हो कि technical analysis काफ़ी forefront पे, और इंडिया में तो I think it's after 2005 you can say it has been a little on the forefront. The third type of analysis is the quantitative analysis, which is all about your data analysis. You know, Siddharth's entire presentation was on the quants and how his team is doing quant-related work. Okay, so it is probably a new type of analysis. I'll say after 2011, it has become more active. Jim Simons, who passed away right now this year, he's considered as one of the best. I'll say quant trading firm. हम सब वॉरेन बफेट करते हैं. जिम सिमॉन्स हैज जनरेटेड, किसी को पता है कितना परसेंट रिटर्न? 67%. एंड कितने पीरियड में, मतलब कितने ईयर्स? 30-35 ईयर्स. 30-35 ईयर्स में से एक ईयर उनका लॉस में था. तो जीतू भाई जैसा ट्रैक रिकॉर्ड है. So he was doing AI and ML related work somewhere in 1990s, जब AI ML इंडिया में तो ब्रोकिंग फर्म कंप्यूटर्स भी नहीं यूज़ कर रहे थे. So what do quants do? Quants obviously do a lot of data analysis. हम उस data analysis का एक छोटा सा पार्ट आज थोड़ा सा open interest के थ्रू देखने का कोशिश करेंगे. Okay. So open interest, what is open interest? I'll go right from the basic to the advanced side. Okay. So what is open interest? Open interest is nothing but your total number of outstanding contracts, which is at the any given moment of time open. मतलब जो unsettled contract है. F&O, we all know what is F&O is. It's a contract between two parties. So the total number of outstanding contract जो कि close नहीं हुए हैं, जो कि open है, that is open interest. Okay. It also defines as the total number of future or option contracts that has not yet been exercised. So OI, what is it, the benefit, or OI करता क्या है? So OI measures the flow of the money into the future market. For each seller of a future contract, there is a buyer of that contract. Thus the buyer and seller create to combine one OI. जब buyer and seller दो एक transaction होता है, so that one OI is created. So therefore to determine the total number of OI, अगर हमको OI समझना है या कितना open contract है, तो we have to see one side. या तो buyer का आप side का total ले लो या seller side का total ले लो. So that will become the total OI outstanding in the market. OI and volume. So these are the two most important things. See, price can be manipulated. Price can be easily manipulated, but volume and open interest, these are very hard to get manipulation. And these are one of the best indicators to, price is always the supreme. Price गॉड है, बट गॉड के बाद भी तो नीचे रहते हैं ना पुजारी जो हमको भगवान तक पहुंचाते हैं. तो ये या भगवान का दर्शन कराने वाले जो होते हैं, वो आप बोल सकते हो प्राइस के साथ अगर आपको एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है, सो देन इट इज योर कन्विक्शन बिकम्स मच हायर. सो ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम्स आर द टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. ट्रेडर्स लुक एट बोथ टू प्रेडिक्ट द मार्केट ट्रेंड्स. थोड़ा सा हम ओआई को पहले ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, देन वील गो इनटू द ओआई के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे. सो लेट्स कंसिडर देयर थ्री टाइप ऑफ ट्रेडर्स इन द मार्केट, ए, बी एंड सी. सो फॉर एग्जाम्पल डे वन को सेलर बी है सेल्स 8 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बायर ए बाय 8 ऑल 8. तो ओआई कितना है उस दिन? 8. ठीक है. सो द ओआई इज ऑन दिस डे 8. So after day 1, both volume and pairs, open interest is 8. Second day, now next day, A sells 5 contracts and C buys 5 contracts. How much is the OI? How much is the volume for second day? 5. So volume 5 है, यहाँ पे हमको clarity है. अब OI में 8 and 13 में confusion है. अभी अगर आप ये देखोगे, डे 1 को किसने बेचा था? बी हैज सोल्ड.
and A has bought 8 and 8. ठीक है, अब A has sold, तो इसमें से अब A के पास कितना रह गया? 3 एंड C के पास 5. तो सेलर कौन है? अभी भी B है ना. So it's a total number of contract is OI is 8. Okay. At the end of the day, volume changed to 5, but the OI still remains the 8, so there's no new contract. It is important to note that volume obviously it changes daily, but OI पूरा series में it remains the same. OI signify क्या क्या करता है? What is the OI signifies या what is the benefit of OI? OI indicates the available number of unsettled future contract. Essentially, the open interest also signifies the liquidity. So higher the liquidity, better the usual. Yeah. So जितना ज़्यादा open interest बड़ा रहता है, उतना ज़्यादा it is better liquid and better to trade that contract. It also helps to predict the market trend. Together, OI and volume helps traders to make better trading decision. Okay. See, it is the entire trading is just a game of probability. It is nothing else. अगर आपको probability समझ में आता है, you can certainly become a good trader. And OI, what it does, आपका अगर जो trade में execution या जो आपका trade में probability 50% था, अगर if you use the OI, if you use the volume, तो वो probability might increase to 60-70%. So your decisions are getting much better because of the more informed decision. So predicting using the OI. Open interest increase, price increase. This already Jeetu has covered in his last slide, but I'll just quickly run through all this again. So what is this? Long built up. More trades on the long side. It indicates, क्या indicate करता है? Market is more bullish या upside जा रहा है. OI decreasing, price decreasing. नहीं, short built up नहीं है. Long unwinding, ठीक है. इसका मतलब क्या हो गया? OI बढ़ रहा है, OI घट रहा है, and price भी घट रहा है. Okay. So longs are covering their position, also called as long unwinding. OI increase, price decrease. So more trades on the short side, short built up is happening into the market. OI decrease, price increase. Shorts are covering their position, also known as a short covering. Okay. अभी आप ये बताओ मेरे को, obviously OI के बारे में सबको अभी तक तो काफ़ी कुछ पता रहेगा. Most of you might be using it very regularly. What is the most important part open interest में? ऊपर वाला लाइन या नीचे वाला लाइन? Okay, can we have a show of hands? How many things ऊपर वाला is the most important part? Okay, and how many of you think the नीचे वाला is the more important part? नहीं, all are important, but more important. More better decision कहाँ मिलेंगे? आपको ज़्यादा information कहाँ मिलेगा? First line, second line. Okay, the crowd is divided. See, देखो, first line is very simple. Long built up, short built up. ये it's like a no-brainer. वो trend up है या it's something like moving average के ऊपर निकल गया चीज़. ठीक है, moving average का crossover हो गया. Once there is a moving average crossover, it is obviously the trend is up. ठीक है, तो a stock showing long built up, it is obviously that it is absolutely a no-brainer. Okay, so what I'm here trying to do is, see, we all are good with taking the trades, but we are very bad with exiting. Okay, आप OI को कैसे यूज कर सकते हो for the purpose of exits? Long built up ये आपको हर सॉफ्टवेयर में, आप कोई भी सॉफ्टवेयर खोलो, पेड फ्री, ओपनली दिख जाएगा. लेट मी जस्ट क्विकली कनेक्ट.
let's say okay, let's go to this software. Forget about that. Okay, this is one software. Clearly long built up, short built up आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है. Okay, ये most of the time long built up and short built up is very good for a taking entry decision, but it will not help you to take a exit decision. Okay, entry में out of my 15 years of experience, I can guarantee you, I've seen retailers, or now I cannot say retailers because पहले ऐसा था कि there were 3 categories into the market or 4, FIs, DIs, prop and client. Okay, and it was always used to be the case जहाँ FIs, DIs पैसा बनाते थे, prop हमेशा पैसा बनाता था, FIs कभी बनाते थे कभी नहीं बनाते थे, client अगर टोटल कैलकुलेशन करूँ मैं क्यूमुलेटिव तो हमेशा लॉस में रहते थे. बट अब क्लाइंट साइड में या रिटेल साइड में इट हैज बिकम अ स्मार्ट रिटेलर एंड अ डम रिटेलर. रिटेलर में भी अब 2 कैटेगरी बन गई क्योंकि जीतू भाई जैसे लोग भी अब रिटेल साइड में ही ट्रेड करते हैं. तो इट इज बिकम अ वन साइड ऑफ द रिटेलर हु इज मेकिंग मनी एंड द अदर साइड ऑफ द रिटेलर. ऑब्वियसली 95% लोग आज भी पैसा तोड़ रहे हैं मार्केट में. ओके, सो मोस्ट ऑफ द पीपल वुड brag about their winning strategies, winning thing, but the data speaks everything. And 95% में से भी जो 5% कमा रहे हैं उसमें भी 2-3% ऐसे हैं जो ब्रेक इवन है. दो दे आर प्रॉफिटेबल बट दे आर ऑलमोस्ट ब्रेक इवन. तो मार्केट में इफेक्टिवली 3-4% ही लोग पैसा कमा रहे हैं. सो लॉन्ग बिल्टअप शॉर्ट बिल्टअप जब हम बोल रहे हैं तो ये तो बहुत क्लियरली विजिबल है. आप कोई भी सॉफ्टवेयर खोल लो, भले ही दैट इज आई चार्ट्स या ऑब्स्ट्रा. में भी फ्यूचर्स डैशबोर्ड. सो यहाँ पे भी लॉन्ग बिल्टअप शॉर्ट बिल्टअप वाले चार्ट्स अपने आप मिल जाएंगे. ओके, शॉर्ट बिल्टअप कहाँ हो रहा है, लॉन्ग बिल्टअप कहाँ हो रहा है. जो डेविल है ना दैट इज हियर. और अगर आप इसको इंटरप्रेट करना सीख जाओ देन यू विल फाइंड अ न्यू लेवल ऑफ domain expertise in your trading, and your exits will become much faster and much better. So what we have to focus on, long built up and short built up. Obviously we have to focus on this. I'm not denying this is less significant, but ये बहुत easily available है. And इसमें आपको it is very simple to analyze these. The devil is here, and जो बोलते हैं ना details are in the devil, and devil में ही पैसा है. Okay, so let's just go. Again, price up, open interest up, strong uptrend. Okay. Before that, let's do a simple analysis. We all use indicator. We all know how the indicator works. सारे indicators mostly momentum वाले एक oscillator जिनको बोलते हैं वैसे ही रहते हैं. What is oscillator? Oscillator is something like a pendulum which moves from 0 to 100 के बीच में oscillate करेंगे. पेंडुलम के जैसे उसको ऑसिलेटर बोलते हैं. ओके, जनरली हर ट्रेडिंग या टेक्निकल एनालिसिस की बुक में ऑसिलेटर्स डिफाइंड रहते हैं. अबव 70 एंड बिलो 30 देयर इज अ जोन. व्हाट इज अबव 70 जोन कॉल्ड? ओवरबॉट. एंड इसको क्या बोलते हैं? ओवर
सोल्ड, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लियर है सब, RSI बोल दो या स्टोकेस्टिक्स बोल दो, whatever indicator you are using, most of these oscillators works on this principle only. Above 70 it is known as a zone where it is overbought. Again, the overbought term itself is wrong. That is probably a topic for another day. But for the sake of timing, we'll just stay with the common parallels जो used होता है. Okay. And below 30 is known as oversold. So strong uptrend, obviously long built up, short built up. Okay, price is going down, open interest is going up, long built up, short built up. Price is going up, open interest is going down. इसको हमने क्या बोला था? Short, price is going up, short covering. ठीक है, तो ये कहाँ पे मिलेगा ये पैटर्न मेरे को? When above 70 RSI रहेगा या below 30 में? Where will I find this? Above 70 में जब 70 प्लस रहेगा या 30 माइनस रहेगा? Where I'll go to find this? This pattern, where can I find? Above 70. Short covering हो रहा है ना, तो कहाँ मिलेगा? ओके, कितने जनों को लगता है अबव 70 और कितने जनों को लगता है बिलो 30? ओके, ये नया था, बीच में तो नहीं रहेगा, मतलब बीच में भी हो सकता है, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज अबव 70 या बिलो 30, ठीक है। सो ऑब्वियसली बिलो 30 जब ये हो रहा है तब शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, ठीक है। जब ये बिलो 30 है तब ये शॉर्ट कवरिंग है, लेकिन ये अबव 70 में भी मिलता है, और ये अबव 70 में मिलता है तब क्या हो रहा है? नहीं, अनवाइंडिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं बोलते उसको, बट दैट इज अ सिग्नल वेयर अप ट्रेंड इज वीकनिंग एंड बेस्ट टाइम टू एग्जिट द शॉर्ट। मतलब क्या हो रहा है? प्राइस अब जा रहा है, डम मनी इज एंटरिंग, बट स्मार्ट मनी जीतू भाई का एग्जिट हो रहा है। तो मैं ये स्ट्रैटेजी से आप जीतू भाई का एग्जिट को प्लान कर सकते हो, या देख सकते हो चार्ट पे कहाँ जीतू भाई ने निकला होगा। वो बताते हैं, मैं एग्जिट बताता नहीं हूँ, बट मैं आपको बता के जा रहा हूँ वो एग्जिट कहाँ करेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी अगर आप लगाओगे तो आपको समझ आ जाएगा जीतू भाई की शीट कितनी की बन रही है इस महीने की। इनकम टैक्स ऑफिसर भी थे ना यहाँ पे। सर अपन बाद में डिस्कस करेंगे। या अगेन प्राइस इज गोइंग डाउन, ओपन इंटरेस्ट इज गोइंग डाउन, दिस इज व्हाट? लॉन्ग्स अनवाइंडिंग, ठीक है। अगेन ये कहाँ मिलेगा? अबव 70 या बिलो 30? अबव 70 हो रहा है देन इट इज लॉन्ग अनवाइंडिंग, जहां प्राइस नीचे आ रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी नीचे आ रहा है। बट यू विल फाइंड मेनी ऑफ दीज वेयर विच इज बिलो 30। मतलब क्या हुआ? डाउन ट्रेंड इज वीकनिंग, गुड टाइम टू एग्जिट योर शॉर्ट्स। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव ऑलवेज स्ट्रगल कि एग्जिट कहाँ करना है या बुक कहाँ करना है। ऑब्वियसली व्हेन यू हैव टू बुक अ प्रॉफिट देयर इज two more things which you should consider: the ATR of the stock, which is the average true range, and how the stock volatility is. But it will give you the best indication कि जहाँ पे smart money is moving out and dumb money is probably entering into the market. Okay. So you just have to focus on these two. क्योंकि obviously as I said, long built up, short built up जो है ये, this is super easy. ये आप कोई भी चार्ट, कोई भी प्लेटफॉर्म, फ्री पेड किधर भी लगाओगे ये आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। आप स्क्रीनर लगा सकते हो, चार्टिंग पे लगा सकते हो, ज़ीरोदा पे कर सकते हो, स्ट्रीक्स पे कर सकते हो, ऑटोमेटिकली पॉपअप दे देगा। ओके, मनी कंट्रोल पे भी सब जगह पॉपअप्स आ जाते हैं इसके कि लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप कहाँ हो रहा है। इसको आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। सो ये चोला फाइनेंस का चार्ट है। ओके, कैन यू सी व्हाट इज हैपनिंग हियर? Where the RSI was almost below 40, ये जोन में,
ओके, दिस इज द 40 लेवल, तो RSI इज बिलो 40. यहाँ पर दिस वॉज द चोला फाइनेंस, उसके बाद एक अच्छा रनअप देखने मिला चोला फाइनेंस में. ओके, आई नो आज की डेट में मोस्ट ऑफ द पीपल वॉन्ट्स अ स्ट्रैटेजी रिलेटेड टू ऑप्शन. फ्यूचर्स बहुत कम जन करना चाहते हैं, सबको बैंक निफ्टी ऑप्शन करना है, सबको 0DT एक्सपायरी करना है. तो डोंट वरी, आई कवर ऑप्शन फॉर दैट ऑल्सो, बट लेट्स स्टिक टू फ्यूचर साइड. उसके बाद आई विल कंक्लूड माई सेशन विद द ऑप्शंस के रिलेटेड स्ट्रैटेजीज. कैन यू सी दिस जोन? See what is happening. This was somewhere around between 13-14 March के करीब. Okay. So what was happening here? This is 28th March का expiry का data. If you'll see somewhere around here, what was happening? What was happening here? Long unwinding. हमने क्या डिस्कस किया था? Long unwinding कहाँ होता है? ऑब्वियसली अबव 70. जो थियोरेटिकली सबने पढ़ा है लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ होगा? अबव 70 ना, जब RSI अबव 70 होगा. बट ये अभी हम कहाँ देख रहे हैं? RSI ऑलमोस्ट बिलो 40 या 40 के रेंज में. अभी यहाँ पर हम लॉन्ग अनवाइंडिंग देख रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ? सी, लॉन्ग अनवाइंडिंग विल हैपन हियर वेयर आफ्टर अ लॉन्ग बिल्ट अप. बट अगर आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग एट द बॉटम ऑफ द चार्ट दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? शॉर्ट्स आर एग्जिटिंग द मार्केट एंड मार्केट इज बिकम न्यूट्रल. ठीक है, उसके बाद आपको एक ट्रेंड मिलता है. सो ऑब्वियसली डजंट इट गिव्स यू अ प्रायर इंडिकेशन कि शॉर्ट्स आर काइंड ऑफ एग्जिटिंग द मार्केट और दे आर स्टार्टेड क्लोजिंग देयर पोजिशन. या जीतू भाई ने यहाँ कहीं शॉर्ट किया होगा 1270 के रेंज में और 1000 में वो बोल रहे हैं कि बहुत हो गया, तो वो 1000 के रेंज में कवर कर रहे हैं. एंड ऑब्वियसली ये 5 टाइम्स रहता है, मतलब ये 200 से 300 रुपया इनटू फ्यूचर में रहेगा तो 5x हो जाता है बिकॉज ऑफ द लेवरेज. एंड जीतू भाई के क्वांटिटीज तो लाखों में रहते हैं, वी ऑल नो दैट. सो कमिंग बैक, I mean, it's not just Jeetu Bhai thing. You know, all the smart money would be taking an exit here. That's why we are getting a price में pattern which is known as a long unwinding at the bottom of the chart. So this is the first indication whenever you get this sort of thing. At the bottom of the chart, अगर आपको long unwinding देखने मिल रहा है, and that too on a 5-day built up and a single day built up. ये डेटा आपको कोई भी सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा, whether you are using iCharts, Opstra, QuantSap, Streaks, सब में ये डेटा मिल जाता है. ठीक है, थोड़ा सा आपको स्कैन करना पड़ेगा. मोस्टली लॉन्ग बिल्टअप 5 days का, 1 day का, ये हर जगह अवेलेबल है. इफ़ यू आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे आपको कंटिन्यूसली लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने मिल रहा है एट द बॉटम ऑफ द चार्ट. शॉर्ट कवरिंग तो यहाँ पे चालू हुआ है समवेयर अराउंड 28 मार्च 20, समवेयर अराउंड 28 से लेकर 20 मार्च के बीच में. बट 12 से लेके 18-19 के बीच में तो क्या हो रहा था? 12 से लेके 20 के बीच में जो शॉर्ट्स थे वो एग्जिट कर रहे थे. जो शॉर्ट्स थे उन्होंने अपना पोजीशन हल्का किया, इसीलिए ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यूसली कम हुए जा रहा था. ओके, प्राइस भी कम हो रहा था. बट शॉर्ट्स अब उनको जो स्मार्ट मनी था वो अपना धीरे धीरे पोजीशन रिड्यूस कर रहा था. एंड दैट्स व्हाई यू विल सी समवेयर अराउंड मार्च, 14 मार्च से 15 मार्च, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको शॉर्ट कवरिंग देखने मिल रहा है, एंड समवेयर अराउंड यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप देखने मिलेगा. सो इफ यू ऑलवेज गोना सी द चार्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ रहेगा? लॉन्ग अनवाइंडिंग और द शॉर्ट्स एग्जिटिंग देयर पोजिशन विल बी समवेयर अराउंड दिस जोन. वेयर विल बी द शॉर्ट कवरिंग विल गोना हैपन? यहाँ पर. This will be the zone where the short covering will gonna happen. Long build up कहाँ बनेगा चार्ट पे? This will be the zone where the long build up will gonna be there, isn't it? As per the definition itself, जब OI प्राइस अप जा रहा है एंड OI अप हो रहा है तो यहाँ पे आपको लॉन्ग बिल्ट अप देखने मिलेगा. बट यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है? शॉर्ट कवरिंग. एंड आप यहाँ पे आपको एक इंडिकेशन मिल रहा है कि देयर समथिंग चेंज हैपनिंग इन द स्टॉक.
obviously that is not the price, that is not the time where you have to jump to buy the price, but it is the time where you have to book your shorts if you are having any. अगर आपने इस जोन में कहीं भी शॉर्ट किया है तो ये आपका जोन है, और उसके बाद वो स्टॉक आपके एटलीस्ट ऑन द बाइंग साइड वाले वॉच लिस्ट, उसमें यू शुड मूव दैट स्टॉक. कमिंग बैक अनदर, ये तो नीचे से ऊपर जाने वाला चार्ट है, ऊपर से नीचे आने वाला चार्ट. हिंद कॉपर, ब्यूटिफुल चार्ट, बट व्हाट वाज हैपनिंग हियर? प्राइस वाज स्टेबल एंड वाज गोइंग डाउन. ठीक है, यहाँ पे गिरना चालू हो गया था और द स्मार्ट मनी वाज स्टार्टेड एग्जिटिंग समवेयर अराउंड, इफ यू विल सी 17-18 जुलाई मई के करीब, 15 to 17 मई, और आई से इवन 19 मई. आई जस्ट चेक द डेटा. 15 to 19 मई के बीच में द प्राइस वाज स्टार्टेड करेक्टिंग. मेजर ड्रॉप जो आया था वो तो ऑब्वियसली 4 जून को आया था, बट उससे पहले ही फिल सी द मार्केट वाज स्टार्टेड स्लोली गिविंग अप इट्स गेन. सो व्हाट वाज हैपनिंग समवेयर अराउंड 15-16 में? शॉर्ट कवरिंग. शॉर्ट कवरिंग हम टिपिकली कहाँ देखते हैं? जब मार्केट नीचे चला गया, शॉर्ट हो गया बहुत ज़्यादा, तब शॉर्ट कवरिंग हो रहा है. हम ये शॉर्ट कवरिंग कहाँ देख रहे हैं? एट द टॉप ऑफ द चार्ट. ओके, सो एज आई सेड, आपको टॉप ऑफ द चार्ट एंड बॉटम ऑफ द चार्ट दोनों जगह लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगा. बट इट इज हाउ यू इंटरप्रीट द डेटा दैट विल डिफाइन यू. सो लॉन्ग अनवाइंडिंग and short covering can happen both the places, where at the top of the chart and at the bottom of the chart. Okay, जब वो top of the chart हो रहा है तब आपको क्या समझ में आ रहा है? The longs are exiting, but when it is happening at the bottom of the chart means the shorts are exiting the position. Okay, उसके बाद आपको यहाँ पे long unwinding देखने मिल रहा है. मतलब क्या हुआ? पहले क्या आया? पहले क्या आया इस जोन में? शॉर्ट कवरिंग. उसके बाद क्या आया? लॉन्ग अनवाइंडिंग. उसके बाद क्या आया? शॉर्ट बिल्टअप. मोस्टली, ओके, दिस इज नॉट ऑलवेज द केस, बिकॉज सी OI डेटा इज वन साइड ऑफ द वन पीस ऑफ द जिग्जॉ पजल. एक स्टॉक मार्केट इज लाइक अ बिग जिग्जॉ पजल. आप एक पीस से ये नहीं बोल सकते हो कि ये पिक्चर कौन सा है ना? दैट जिग्जॉ पजल, सिर्फ आप मंकी देख के ये नहीं बोल सकते हो कि जंगल का जिग्जॉ पजल है. इट कैन बी अलादीन का मंकी ऑल्सो, और इट कैन बी प्रकाश जी का स्लाइड का मंकी ऑल्सो. बट इट विल गिव यू वन हिंट दैट एटलीस्ट देयर इज अ मंकी इन द पिक्चर. ओके, तो ऑब्वियसली this will not always going to be the case, but if you are getting something like this where the short covering is happening, then a long unwinding is happening, you can take a position before the short built up. Before short built up हो रहा है मार्केट में, आप उससे पहले भी पोजीशन ले सकते हो. ऑब्वियसली आपको प्राइस एक्शन इसके साथ इंटरप्रीट करना पड़ेगा. यू विल हैव टू सी द PCR डेटा, जिसको हम पुट कॉल रेशियो बोलते हैं. आई विल डिस्कस पुट कॉल रेशियो को भी कैसे इंटरप्रीट करना है, बिकॉज द वे पीपल इंटरप्रीट स्पेसिफिकली जो 0DT कर रहे हैं वो, या when there's a short covering, yeah. Since it's long data there, in the middle, how would you know that the prices are going to go up or down? How do I know? Because you're saying that there's a top there. Yeah. How do I know is? So that's not a because, top actually. Yeah, if you're- because do you think there are shorts here? No. Do you think there are shorts here? Yeah, there might be. Yeah. No, see, there may not be shorts because the price has gone up. Yeah. Okay, because price has gone up, there's a common belief that price up किस लिए के कारण जाता है. It is not because you and me buying and selling. It is somebody like Vijay Kedia ji, somebody like bigger institution, somebody like Jitu Bhai, somebody of those stature is buying. Yeah. Okay, so that's why we have seen a long built up. Obviously, long price has gone up. Yeah, yeah. यहाँ पर अगर short covering हो रहा है हाँ. at the top of the chart, हाँ. so it is an indication that the smart money is exiting. Okay. See, don't go on the terminology. That's what I'm saying, that details are in the devil. Correct. We confuse ourselves just by seeing the short covering. We think कि shorts निकल रहे हैं.
लॉन्ग अनवाइंडिंग होना चाहिए एक्चुअली वहाँ पे अगर लॉन्ग एंड सी डोंट गेट इनटू द टर्मिनोलॉजी, गेट इनटू द कॉन्सेप्ट. क्या हो रहा है? ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है हाँ और प्राइस बढ़ रहा है. हाँ प्राइस बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है. मतलब क्या हो गया? स्मार्ट मनी तो निकल रहा है. आप टर्मिनोलॉजी भूल जाओ. शॉर्ट कवरिंग क्या किसको बोलते हैं हम? जब ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है और प्राइस बढ़ रहा है. लेट मी जस्ट क्विकली. So this was your this was this thing. OI डिक्रीज हो रहा है एंड प्राइस इंक्रीज हो रहा है. सो हम उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग. Okay, don't get into the terminology part. That is a terminology. That's why the people get confused. आप कॉन्सेप्ट समझ लो, ये छोड़ दो. शॉर्ट कवरिंग उसको क्या बोलते हैं डजेंट मैटर. यू कॉल इट न्यूटन, यू कॉल इट आइंस्टाइन, ओके ओके it will not matter. What is important is OI is decreasing and still the price is increasing. मतलब प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन कोई फ्रेश मनी नहीं आ रहा है. इनफैक्ट जो पैसा आया हुआ था वो निकल रहा है. मतलब जिन्होंने लॉन्ग किया था नीचे से, दे आर एग्जिटिंग. So the dumb retailers are buying. प्राइस में गो अप. एज आई सेड, प्राइस कैन बी मैनिपुलेटेड बट OI डेटा कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड. Correct. प्राइस कैन गो अप बिकॉज अभी जीतू भाई निकल गए लेकिन हम तो है ना मार्केट में. हम और आप थोड़ा तो खींचेंगे ना ऊपर, Correct. Correct. बट हम बस थोड़ा ही खींच सकेंगे. हाँ हाँ विल नॉट बी एबल टू टेक 400 का हिंद कॉपर टू 800 लेवल और 700 लेवल. Correct. Okay. हाँ हाँ And there are such smart algos now which can help. I mean, we make algorithm platforms. We are into HFT platform. Are one of the algorithms where if you can exit like even, probably if you want to even exit like 20 lakh Reliance, we can give you the best price. जो आपका कोई भी डीलर आपको नहीं करके दे सकता. So we have an algorithm which slice the orders. So you just have to put your number and just put it. Algorithm will keep on bid ask करके वो बेचता रहेगा दिन भर में. And we have seen a lot of people are in fact even using to execute big orders. So it is a HFT platform, high frequency trading platform. So that's why it is not impacting the price. The smart money is getting out without impacting the price. The impact cost is less. Yeah. That's why. So forget about the term. Okay. If this is happening at the bottom of the chart, okay, if this is happening at the bottom of the chart, certainly it is a short covering. Okay, but it is happening at the top of the chart, matlab at the up of the or the top of the chart. What does it signifies? It signifies that smart money is exiting without impacting the price. So that is like real smart money. मतलब उन्होंने अपना profit book कर लिया है. Okay, so आपके लिए भी best time क्या रहेगा उस समय? अगर आपके पास long है तो profit book कर लो. You might miss out some few percentage points. 2-4 percentage point miss भी हो गया तो any which ways, nobody in the planet can catch the exact top and exact bottom. तो अगर हमने कोई चीज़ 360 लिया और 400 पे भी मिल रहा है exit, then also it's beautiful. उसके बाद भले वो 410 जाए. Okay. Thank you. Yeah. So, I mean here, OI was continuously decreasing and price was still going up. Price was still going up. That's why software उसको classify कर रहा है कैसे? Short covering के लिए. ठीक है? But यही यहाँ पे ही magic है. अगर उस software को classify करने दो उसको short covering के लिए, let people interpret and think it is a short covering. But we know if it is, we are seeing, okay, I have this, I've done several times, what I'll say, this presentation, that's why I've not covered it here. I use 2 Bollinger Band. You'll see here 2 Bollinger Band. In fact, there's a whole YouTube video. I've done it on YouTube. It's available. Okay. So it is zone 1, I call it, and this is zone 4. Okay. Zone 4 is typically a bear zone, जहाँ पे bears का घर आप बोल सकते हो. And zone 1 is a bull zone. ठीक है. And this zone 2 and zone 3 is basically a no man's land. Zone 2 and zone 3 is a no man's land. This is just a simple Bollinger Band, 2 Bollinger Band setup. One is a 2 standard deviation, another is a 0.7 standard deviation. Okay. तो usually ये जो zone है, यहाँ पे long built up देखने मिलेगा.
तो क्रोनोलॉजी क्या रहती है, आपको हमेशा पहले, अगर टॉप से अगर आप देख रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या देखने मिलेगा, शॉर्ट कवरिंग. टिपिकली at least 60-70% of the time you'll find this chronology, and if you can find such chronology, it is the time to make a best trade. Short covering, उसके बाद you'll see long unwinding, उसके बाद you'll see a short built up. तो सबसे पहले क्या आएगा, यूजुअली शॉर्ट कवरिंग will gonna come. सेकेंड लाइन में आपको मिलेगा जब जहां लॉन्ग्स अनवाइंड कर रहे, मतलब क्या हो गया, लॉन्ग्स आर डूइंग अ पैनिक एग्जिट, जहां पे दे डोंट केयर द प्राइस, दे विल एग्जिट बाय डेंटिंग द प्राइस. मतलब वो ओपन इंटरेस्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग में क्या होगा, ओपन इंटरेस्ट भी ऑब्वियसली डाउन होगा एंड प्राइस भी डाउन होगा. मतलब अब आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, अब आपको बेचना है, अब आपने समझ लो 350 से लॉन्ग कर रखा था, अब 300-400 चला गया, नाउ यू विल से कि 4 रुपये नीचे करके बेच. ठीक है, दैट्स वाई यू विल सी द लॉन्ग अनवाइंडिंग हैपनिंग, वेयर द लॉन्ग्स आर टेकिंग अ पैनिक एग्जिट और दे आर बुकिंग विद अ डेंटिंग द प्राइस. ठीक है, देन there will be a short built up. Short built up मतलब where they are actually making a short position. And the fourth, obviously, उसके बाद again the cycle will gonna start. Okay. Are we clear on this? Yeah. मैं उस पे आता हूँ. It's actually a future OI. ठीक है. It is whatever I spoke here is the future का OI. Okay. तो अभी एज यू सेड देयर आर 3 टाइप ऑफ OI, फ्यूचर OI, कॉल OI एंड पुट OI. अभी इसमें ये बताओ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है. लेट्स डू दिस, फ्यूचर OI और ऑप्शन का OI. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, कैन वी हैव अ शो ऑफ हैंड, फ्यूचर्स पे कितने जने, ओके, ऑप्शन में कितने जने, ओके, ऑप्शन में कम जने, इसीलिए कम जन पैसा कमाते हैं मार्केट में. Okay, option OI is far important than future OI. Why? Future OI में क्या हो रहा है, आप एक ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आपने लॉन्ग किया, मैंने शॉर्ट किया, आपको कितना मार्जिन देना पड़ा, टिपिकल मार्जिन इज 20%. 10 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है, आपको भी कितना मार्जिन देना पड़ा, 2 लाख रुपया, मेरे को कितना मार्जिन भरना पड़ा, 2 लाख रुपया. प्राइस अगर 2% अप गया, आपका प्रॉफिट कितना होगा, एग्जैक्टली जितना मेरा लॉस है. Okay, so we are linear. There is a linear payoff diagram. Linear मतलब there is a linear payoff diagram. जितना आपका प्रॉफिट है उतना ही मेरा लॉस है. Considering we don't even consider right now the brokerage part. ठीक है, क्या बोलते हैं उसको लैटिन में, पैरी पैसू. Considering everything constant. ठीक है, तो बट ऑप्शन में क्या हो रहा है, से आई एम लॉन्ग ऑन ऑप्शन, यू आर शॉर्ट ऑन ऑप्शन, मेरे को कितना मार्जिन भरना पड़ा, ओनली द प्रीमियम. बैंक निफ्टी के परस्पेक्टिव से बोलूँ, अगर 200 का ऑप्शन है, 15 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट साइज, 3000 रुपया, आपने कितना मार्जिन भरा, लाख रुपये अप्रॉक्सीमेटली, 10 लाख का मार्जिन, 10% का मोटा मोटा मार्जिन रहता है इंडेक्स में, 1 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ. अगर समझ लो बैंक निफ्टी 4% ऊपर चला गया, मैंने कॉल खरीदा है, मेरा प्रॉफिट कितना होगा, एस्ट्रोनॉमिकल, 4% ऊपर चला गया बैंक निफ्टी, मतलब हम कितना बोल रहे हैं, 8,000 पॉइंट, समझ लो 4,000 पॉइंट ऊपर गया, और ETM कॉल था और 0 DT एक्सपायरी, आई एम सुपर लकी. तो कितना मिलेगा, 200 रुपये का ऑप्शन कम से कम 3-3.5 हज़ार जाएगा, 3,000 इंटू 15 रुपये, मतलब कितना हो गया, CA से भाई हॉल में 45,000 लगाए थे, कितने, 3,000, 45,000 रुपये मिल रहे, तो असिमेट्रिकल रिटर्न है. ठीक है, आपका लॉस ऑब्वियसली 45,000 रुपीज़ का. लेकिन अगर आप प्रॉफिट में रहते हो, समझ लो वो ATM 0 होता है, तो आपका प्रॉफिट कितना है, मैक्सिमम 3,000 रुपीज़. तो ऑब्वियसली यू आर टेकिंग मच हायर रिस्क, यू आर टेकिंग मच हायर, यू आर पेइंग मच हायर मार्जिन एंड यू आर गेटिंग मच लोअर रिटर्न पोटेंशियल. तो हु स्मार्ट, मैं, आप, यू आर द सेलर ना, इतना शर्म क्यों आ रहा है अपने आपको स्मार्ट बोलने में, यू, इन दिस केस यू आर द सेलर. Okay, so typically it's the sellers
we usually consider they are the smarter money. Why? Because obviously somebody who's paying more margin, taking less return and taking more risk will have more informed decision. Okay. Now, with zero DT, with zero everyday expiry, actually हम zero DT बोलते, but it is not zero DT. Zero DT मतलब zero day expiry. तो हर दिन एक expiry. But zero DT US में जिसको बोला जाता है, जैसे US में डाउ जोन्स के हर दिन के कॉन्ट्रैक्ट है. डाउ जोन्स मंडे एक्सपायर होता है, ट्यूसडे एक्सपायर होता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ऐसे 5 दिन एक्सपायर होता है. हमारे यहाँ हम एक दिन एक इंडेक्स एक्सपायरी कर रहे हैं, दूसरे दिन दूसरा इंडेक्स है. तो निफ्टी के जिस दिन 5 डे के एक्सपायरी मिल जाएंगे, दैट डे इज नॉट वेरी फार. आई थिंक एक NSE के IPO से पहले आई थिंक दिल लॉन्च इट, बिकॉज यूएस में है. एज देवेंद्र भाई सेड येस्टरडे कि हम यूएस को फॉलो करते हैं. नहीं, प्रकाश जी सेड येस्टरडे कि जो यूएस में होता है वो इवेंचुअली यहाँ आ ही जाता है. okay? तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि हर दिन एक्सपायरी मिलेगी निफ्टी की. सो दैट इज इफेक्टिवली जीरो DT. बट जीरो DT आने के कारण क्या हो गया है, इंडेक्स में दैट इज नॉट वेरी रेलिवेंट राइट नाउ कि कहाँ ऑप्शन राइटर है. बट स्टॉक्स में आज भी वो बहुत रेलिवेंट है कि ऑप्शन राइटर्स कहाँ प्लेस्ड है. ठीक है. एंड ऑप्शन राइटर्स ऑब्वियसली स्टॉक्स में तो और ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं. इंडेक्स, आई हैव नेवर सीन इंडेक्स गोइंग मोर देन 20%. मतलब मेरे पूरे 15 साल के करियर में 2-4 इंसिडेंट्स होंगे जहाँ पे इंडेक्स सर्किट्स लगे हैं. बट स्टॉक्स में तो हर दिन एक ना एक स्टॉक चला ही जाता है सर्किट में. ठीक है. 37%, 38% DHFL गिरते हुए देखा है एक दिन में. एक और था बॉम्बे, दिल्ली का एक ऑटोमोबाइल एमटेक ऑटो है ऐसा कुछ, दैट क्रैश्ड ऑलमोस्ट 50-55% वन डे को. उनका कुछ बॉन्ड डिफॉल्ट था. सो यू नो स्टॉक्स हैज ह्यूज रिस्क. तो स्टॉक्स में इट इज स्टिल वेरी रेलिवेंट टू सी द OI एंड OI में. अब ये बताओ OI में व्हाट इज फार इंपॉर्टेंट, कॉल ऑप्शन का OI या पुट ऑप्शन का OI? Okay, how many of you think call? Okay, how many of you think put? Okay, सिर्फ 2 जन को कॉल लगता है, 3 जन को पुट लगता है. वाओ. Okay, so put is far important. Why put is far important? क्योंकि कॉल राइटर इज bullish, कॉल राइटर इज bearish on the market. ठीक है. कितने बार हुआ है मार्केट ने अपर सर्किट लगाया, या 4000 पॉइंट का बैंक निफ्टी ने रैली दिया, या 4-5% बैंक निफ्टी. आई रिमेंबर हार्डली 3 इंस्टेंस जहाँ बैंक निफ्टी हैज लाइक ड्रिवन वेरी हाई. वन वॉज निर्मला सीतारमन कैंडल, अनदर वॉज दिस UPA गवर्नमेंट कमिंग टू द पावर, अपर सर्किट था. उसको छोड़ के मेरे को याद नहीं है कि ऐसा बहुत मैग्निफिसेंट 5-7% का मूव इंडेक्स में मिला है. ठीक है. बट डाउन साइड में उंगलियां कम पड़ जाएंगी. इतने इंस्टेंसेस जीतू भाई तो गिना देंगे, मेरे को भी 10-15 तो इंस्टेंसेस याद है जहाँ की स्टॉक्स गिरे. और स्टॉक साइड में तो बहुत ज़्यादा है. स्टॉक साइड में अप साइड जाने में बहुत कम रहते हैं अपर सर्किट वाले, लोअर सर्किट वाले बहुत ज़्यादा देखने मिलेंगे. ओके. तो पुट राइटर इज द वन हु इज टेकिंग मैक्सिमम रिस्क, क्योंकि अगर मार्केट गिरा तो सबसे ज़्यादा इसकी ही लॉस होगा, इसका ही. ओके. सो वी हैव टू सी हाउ द पुट राइटर इज बिहेविंग ऑलवेज. आप बाकी सब छोड़ दो, आप फ्यूचर्स का OI छोड़ दो, कॉल का OI छोड़ दो, यू स्किप दैट. बट सिर्फ और सिर्फ अगर आप पुट राइटर का OI इसको भी क्लोजली मॉनिटर करना चालू कर दोगे ना, और इनफैक्ट इफ यू वांट टू मॉनिटर समथिंग, स्टार्ट मॉनिटरिंग पुट का OI, पुट राइटर का OI. okay. तो दिस इज द फार मोर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑल द 3. okay. एंड स्पेसिफिकली इफ यू आर ट्रेडिंग बैंक निफ्टी ऑप्शंस और निफ्टी ऑप्शंस, आप सिर्फ और सिर्फ पुट वालों का जो ATM है, और ATM से 2-3 स्ट्राइक इन एंड आउट, सिर्फ आप उनका, और स्पेसिफिकली जो जस्ट इन द मनी है, 2 स्ट्राइक इन द मनी या 2 स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी, उनका आप पैटर्न देखो कि वो कितने जल्दी पैनिक हो रहे हैं. okay. डोंट सी द 2000 पॉइंट वाला दूर वाला पुट राइटर, उसको इम्पैक्ट नहीं आएगा. लेकिन जो ATM वाला है वो सबसे ज़्यादा पैनिक करता है. okay. So put call ratio is very simple. It is just calculated by dividing the total number of put options, total volume of the put option, dividing by the total number of call option. Okay. So again, any chart you'll see, let's just quickly.
let's say, how much is the total number of put? 10 lakh 42,000. 10 crore 42 lakh 48,000. ठीक है, 1042 एंड 11 1040 और 1130 आप समझ लो. तो पुट कॉल रेशियो कितना हो जाएगा? पुट कितना हो गया? 1040 और 1130. तो मतलब हम पुट कॉल रेशियो कैसे निकालेंगे? इट विल बी मोर देन 1 और लेस देन 1? लेस देन 1. ठीक है. सो अभी पुट कॉल रेशियो का बेनिफिट क्या है? पुट कॉल रेशियो इट्स अ कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर. वाई इट इज़ अ कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर? इट विल टेल यू अगेंस्ट द ट्रेंड वाली चीज़ें. मतलब अगेन इट इज़ अ इंडिकेटर विच विल हेल्प यू टू मेक एन एग्जिट. ठीक है. इट विल ऑलवेज गिव यू कॉन्ट्रेरी व्यू. मार्केट बुलिश रहेगा तो वो आपको बताएगा एग्जिट कब करना है, और जब मार्केट बेरिश रहेगा तो वो आपको बताएगा मतलब लॉन्ग साइड में कब जाना है. ठीक है. इट टेल्स यू द मार्केट सेंटिमेंट्स. मतलब मार्केट का मूड मॉल क्या है. इट्स अ फियर इंडिकेटर, इट्स अ ग्रीड इंडिकेटर यू कैन से. कि अगर मार्केट में इफ पुट कॉल रेशियो इज आई विल से मोर देन 1.4 1.5 से ज़्यादा है, अगर मार्केट में PCR इज मोर देन इज ग्रेटर देन और प्लस आई विल से 1.5 से ज़्यादा है, तो मार्केट इज बिकमिंग ओवर ग्रीडी. ठीक है. ओवर ग्रीडी में अगर मार्केट ओवर ग्रीडी हो रहा है तो आपको क्या होना है? सुपर कॉशियस, एग्जिट ऑल योर लॉन्ग्स. मार्केट को होने दो इरैशनल वॉट एवर टाइम इट वॉन्ट्स टू बी. ऑलवेज लीव द लास्ट चिप ऑन द टेबल. Okay. If market is going, say, less than 0.6, it is going less than 0.6 or 0.5. मतलब market is becoming over fear है market में. There is a हद से ज़्यादा fear है. That is the time to go and buy, obviously go and buy small quantity in cash. Don't buy in future. ठीक है. Even market is becoming fear because market can remain, जिसको बोलते हैं ना, मार्केट कैन रिमेन इरैशनल मोर देन यू कैन बिकम सॉल्वेंट. तो आपके सॉल्वेंसी से ज़्यादा मार्केट बेवकूफ़ रह सकता है. इंसॉल्वेंट, या मार्केट कैन रिमेन इरैशनल टिल द टाइम यू बिकम इंसॉल्वेंट. ठीक है. तो मार्केट, वी ऑल अग्री कि भाई मार्केट में ओवर फियर है, बट दैट डजंट मीन यू हैव टू गो एंड बाय द फ्यूचर्स. वाई फ्यूचर्स मत खरीदो? क्योंकि फ्यूचर इज अ लेवरेज प्रोडक्ट. व्हेन यू आर बाइंग अ फ्यूचर, एक्चुअली आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ 100 रुपये का आपका माल खरीदने का पोटेंशियल है, आप उसकी जगह 500 रुपये का माल मिल जाता है. दैट्स इट. फ्यूचर इज नो फैंसी थिंग. इंस्टेड ऑफ दैट यू बाय 100 रुपीज़ का ही कैश में. ठीक है. सो एटलीस्ट योर रिस्क विल बी प्रोटेक्टेड. एंड ठीक है, कैश में भी हम जब लेते हैं, मार्केट गिरता है तो वो इम्पैक्ट होता है, बट वो M2M नहीं इम्पैक्ट आता है ना. तो इट डजंट अफेक्ट अस साइकोलॉजिकली. ठीक है. जहाँ वो M2M इम्पैक्ट देखने मिलता है वहाँ पे वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आ जाता है. एंड ट्रेडिंग इज 70 और 80% योर साइकोलॉजी. इट्स ओनली 20% ऑल द आई विल से टेक्निकल फंडामेंटल ज्ञान सब कुछ. इट्स ओनली एंड ओनली द साइकोलॉजी. ठीक है. इनफैक्ट मैं जीतू भाई को बोलूँगा नेक्स्ट टाइम से एक पूरा दिन साइकोलॉजी पे रखो और एक दिन में बाकी आप ये सब कवर कर दो, फंडामेंटल टेक्निकल और ये सब. या इनफैक्ट ऑल योर पूरा 20 जो आपके ट्रेडिंग रूल्स है जस्ट अ साइकोलॉजिकल रूल्स. दैट इज नथिंग टू डू विद द हाउ टू इंटर द मार्केट, बट इट इज हाउ टू ट्रेन योर माइंड टू स्टे इन द मार्केट. आप कैसे लॉन्ग टर्म इनिंग खेल सकते हो. ओके. सो इट इज अ मार्केट सेंटिमेंट इंडिकेटर ऑल्सो. यस. हाँ, बेस्ट इंडिकेटर. मतलब इट इज गुड टाइम टू बुक ऑल योर प्रॉफिट्स. लेट उसके बाद रन करने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. बट इधर द पुट कॉल रेशियो विल गोना चेंज और द मार्केट विल हैव टू करेक्ट इटसेल्फ. सो दे, जिसको हम बोलते हैं ना मीन, रिवर्सिंग बैक टू द मीन विल शुड हैपन. सो अगर आपको कभी भी पुट कॉल रेशियो 1.5 के ऊपर दिख रहा है, बेस्ट इज टू एग्जिट. ठीक है. एंड बेस्ट इज यू डोंट हैव टू कैलकुलेट द PCR. मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग चार्ट्स आप कोई भी सॉफ्टवेयर खोलोगे ना तो उसमें आपको PCR डायरेक्टली मिल जाएगा. सो यू विल फाइंड बोथ PCR के चेंजेस सारे साइट पे. आई चार्ट्स खोल लो आप, ऑप्स्ट्रा में खोलोगे. लेट मी जस्ट ओपन ऑप्स्ट्रा ऑल्सो.
Let me open Opstra. No, I'll come back to that. Okay. Let me open Opstra first. If you'll see here, you'll get OI PCR and even PCR Opstra में तो here you get volume PCR also. That is again a session for probably next time. जैसे आजकल सब OTT प्लेटफॉर्म्स देखते हैं, OTT में हुक रहता है ना, तब आप नेक्स्ट एपिसोड देखते हो एंड उसके कारण आप पूरा, जब तक एपिसोड खत्म नहीं होता आप पूरी रात अपनी काली करते हो. अभी मिर्ज़ापुर का सीरीज आएगा, ये रहेगा कि कौन कितने पहले निपटा रहा है उस सीरीज को. सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू अ हुक. नेक्स्ट सेशन के लिए आई विल बी डिस्कसिंग दिस. So again, coming back, so all these softwares, I think Streak is a free software. वहाँ पे भी आपको PCR मिल जाएगा. Some of these are paid software, maybe like 500 to 1000 rupees per month. That's it. इतने सस्ते हैं ये, मतलब एक Starbucks की कॉफ़ी से ज़्यादा सस्ता है. ठीक है. और अगर आप बैंक निफ्टी या छोड़ दो, आप फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर रहे हो तो आपका 0.5% का भी मूव करता है. ठीक है, कोई भी ऑप्शन, तो 0.5% का मूव इज ऑल्सो 5000 रुपीज़. टिपिकल एनी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज 10 लाख रुपए का. 10 लाख रुपए में 1% का भी मूव आया है तो 10,000 रुपये का मूव है. ठीक है, आपने कितना मार्जिन बढ़ा कितना, इससे फ़र्क नहीं पड़ता. टिपिकली 10,000, 0.5% का मूव में भी इट्स 5,000 रुपीज़ विच विल कवर योर इंटायर 1 year ऑफ सब्सक्रिप्शन चार्जेस. सो मेरे तो वी हैव अ प्रॉप डेस्क, वी हैव अ फिलॉसफी कि हम विल हैव अंडर स्टाफिंग बट ओवर सॉफ्टवेयर एक्सपेंसेस. हम 4 सॉफ्टवेयर की जगह 6 सॉफ्टवेयर लेंगे, लेकिन एक आदमी कम कर लेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर कैन डू मोर थिंग्स देन प्रॉब्ली अ ह्यूमन, एंड उसको मॉनिटर नहीं करना पड़ता, एंड इट गिव्स अस मोर एनालिटिकल एज. तो आपके अगर एक आर्टिकल को बैठा दो, एक आर्टिकल कम कर दो, बट एक सॉफ्टवेयर अच्छा खरीद लो, खुद से थोड़ा काम कर लो, बट इट कैन गिव यू सो मच ऑफ एज. Coming back, market timing, obviously it helps you to time the market. Most of the people say never time the market, don't time the market. That is all good for an investor. For a trader, timing is everything. ठीक है, अगर आप निफ्टी 3 जून को खरीद रहे हो मार्केट क्लोजिंग में और 4 जून के क्लोजिंग में बेच रहे हो तो ऑब्वियसली इट विल हर्ट यू अ लॉट. ठीक है, बट हाँ 10 साल के लिए खरीद रहे हो 3 जून को या 4 जून को, इट विल नॉट इम्पैक्ट हार्डली 1%, बिकॉज आप निफ्टी यहाँ से मल्टी बैगर देखने वाले हो 200% का रिटर्न, तो 1% हियर एंड देयर विल नॉट इम्पैक्ट. बट इफ यू हैव अ लेवरेज पोजीशन इट डू इम्पैक्ट्स अ लॉट. ओके, मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स हियर वुड बी ट्रेडिंग बैंक निफ्टी ऑप्शंस. उनको तो स्प्लिट सेकंड का भी डिफरेंस पता है कि फॉरगेट अबाउट 5 मिनट 2 मिनट, 1 सेकेंड में भी अगर 3 सेकेंड में निफ्टी 1% गिर सकता है. एक निफ्टी जो कि $3 ट्रिलियन इकोनॉमी का इंडेक्स है, that can drop 1% in 3 seconds. So you can just imagine, how much each second costs. It helps you sector analysis. Obviously, by doing a PCR analysis of the stocks, it gives you a sector analysis also. How? Because see what happens, usually big money is, whenever it is coming into the whole sector. It is never going to come into one stock. Reliance is just one stock. बट अदरवाइज जैसे आप आईटी में देखोगे तो पूरे आईटी में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट चल रहा होगा. पीएसयू में बाइंग इंटरेस्ट है तो पीएसयू बैंक्स में पूरा एक बाइंग इंटरेस्ट चल रहा है. बैंक ऑफ बड़ौदा भी भागेगा, कैन बैंक भी भागेगा, पीएनबी भी भागेगा, एसबीआई भी भागेगा. दे मे डिफर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ गेन, बट मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स विल गोना गिव सिमिलर सॉर्ट ऑफ पैटर्न. सो व्हेन यू आर डूइंग अ पीसीआर एनालिसिस ऑफ ईच स्टॉक, इट कैन गिव यू अ सेक्टर एनालिसिस ऑल्सो वेरी वेल. इट इज वंडरफुल indication of volatility. So people like me who trade vol या वेगा traders जो है, जो सिर्फ वेगा ट्रेड करते हैं, उनके लिए it is I'll say boon और I'll say रामबाण जो बोलते हैं ना जिसको, मतलब it's like a God sent gift, जहाँ पे आपको volatility को measure करने के लिए भी we use lot of vol के indicators like EMEA and GARCH models, but PCR is the most simplest and most effective model to measure the volatility, how the volatility will going to impact.
Coming back to the PCR, as I said, most of the people analyze this option chain. If you'll see, जब भी लोग ऑप्शन चेन देखते हैं तो वो जनरली इस तरीके के ऑप्शन चेन देखते हैं, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, इनफैक्ट इसमें तो डेल्टा गामा भी है. मोस्ट ऑफ द पीपल वुड बी सीइंग एनएससी वाला ऑप्शन चेन, उसमें और कम डेटा रहता है. So most of the people see this sort of option chain. Okay, but it looks very daunting. Daunting मतलब बहुत confusing लगता है, इसे आप बहुत ज़्यादा interpretation नहीं कर सकते हो. Okay, so better to see something like this. This is nothing with the same option chain, but it just 7 strikes or 8 or 9 strikes का option chain. So you're not selecting the entire strike, you're just focusing on the key strikes. Okay, and as I said, you have to focus where? Call side, put side? Put side. Okay, so आपको क्या focus करना है? ये PCR data, ये और ये. Specifically if you are doing Bank Nifty option chain, and Bank Nifty if you are trading, which expiry you have to select? This current week expiry. Okay, monthly expiry has zero relevance because सारा game तो इसी expiry में हो रहा है. So as your question was, if you are trading Bank Nifty, you have to see this expiry. If you are trading stocks, then obviously there is a monthly expiry. So this is where you have to keep your entire focus. Okay, this is a VWAP line in this option chain, which is also very, very significant. As we say, or as we all know, VWAP के ऊपर price is supportive, मतलब it is going to, you have to go long. VWAP के नीचे, it is the price where you have to go short. VWAP is like something like हाथी के footprints. Okay. I always say this, and I'm a strong believer of this sentence. If you want to become a good technical analyst, you don't have to be a leader. You have to be a follower. Okay? And a good technical analyst never asks why. Why Adani stocks are going up? Why PSUs are going up? Why HAL is trading at 70 ka P? Who cares? You have to ask what. करना क्या है? भैया सबको पता है इस रूम में, जब से मोदी जी ने बोला कि ये स्टॉक्स खरीद लो, ठीक है, स्टॉक्स इज गोइंग आउट ऑफ द रूफ. बट लोग आर पीपल आर आस्किंग व्हाई ही सेड दैट, व्हाई ये HL इतना महंगा है, ये पहले तो 6 के PE में नहीं था अवेलेबल. अरे मैं पहले स्कूल जाता था, इसका मतलब आज भी स्कूल जाऊँ, दैट डजंट मीन ना. पहले अदर प्राइम मिनिस्टर्स यूज्ड टू बोर्ड अ रशियन एयरक्राफ्ट एंड इंटरनेशनल मीडिया में न्यूज़ बनती थी दैट इंडियन प्रेसिडेंट हैज़ बोर्डेड अ सुकोई, और जो उसको क्या बोलते हैं, सुक्रोती या क्या टर्म्स बोलते हैं जो ऊपर जाके फ्लाई करते हैं, देयर इज सम टर्म फॉर दैट. बट से एवरी प्रेसिडेंट, वेदर इट्स अब्दुल कलाम और प्रतिभा ताई पाटिल, मोस्ट ऑफ दीज, या राजनाथ सिंह, दे ऑल हैव बोर्डेड दीज एयरक्राफ्ट्स. ठीक है, पहली न्यूज़ क्या बनती थी? दैट इंडियन प्रेसिडेंट हैज़ बोर्डेड अ सुकोई एयरक्राफ्ट, रशियन एयरक्राफ्ट. अब न्यूज़ क्या बनती है? इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैड बोर्डेड तेजस. सो उससे क्या ब्रांडिंग किसकी बढ़ रही है? इंडियन प्राइम मिनिस्टर की या तेजस की? फिलीपींस को अगर प्लेन खरीदना है तो एक मिग या एक सुकोई की जगह 10 उसको तेजस मिल जाएंगे. सो दैट इज व्हाट द ब्रांडिंग हैज चेंज्ड. बट फॉर अस इट इज रियली इमैटेरियल. जो चल रहा है, एज जीतू भाई सेज, जीतू भाई के लिए मेरे को धीरू भाई का नाम याद आ जाता है. जीतू भाई बोलता हूँ, धीरू भाई आता है मुँह से. तो हमको फर्क नहीं पड़ता कि क्या, वाई इट इज गोइंग अप. ऑल वी हैव टू फोकस इज व्हाट. करना क्या है? क्यों ITC नहीं चल रहा है? अरे नहीं चल रहा, अच्छा है ना. इट इज गिविंग यू अ क्लियर स्ट्रैटेजी कि एक स्टॉक साइडवेज है, ठीक है, उससे अच्छा स्टॉक ही नहीं मिल सकता. अगर मेरे को ऐसा कोई साइडवेज स्टॉक बता दो आज भी आप, आई कैन मिंट मनी. ठीक है, यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट यू हैव टू डू. अगर कोई स्टॉक अप जा रहा है, इट्स वेरी सिंपल. व्हाई वी हैव टू फोकस ऑन व्हाई, वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट. अगर इतना समझ में आ गया स्टॉक अप जा रहा है, तो बस उसको हर शॉर्ट ड्यूरेशन में, जैसे कल मितेश भाई ने वो स्ट्रैटेजी बताई, 5 और 13 का क्रॉसओवर लगाओ, MACD लगाओ, हर ट्रेंड अप में, हर ब्रेकआउट में यू हैव टू गो लॉन्ग. एज सिंपल एज दैट. कोई स्टॉक नीचे जा रहा है
all you have to do is find a shorting opportunity. That's it. Okay. Coming back here, as I said, VWAP is very important. तो यहाँ पे obviously it gives you a stock whether it's above VWAP or below VWAP. This is the option price. Any price which is above VWAP, it is outside, I'll say, the seller zone के comfort में. क्योंकि seller का average क्या है, वो VWAP line है. या बड़े इंस्टीट्यूशन का एवरेज क्या होगा, वो VWAP लाइन है. तो VWAP के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बनता है और बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी बनता है. सो एनीथिंग ब्रेकिंग अबव VWAP विल ऑलवेज गोनो, एक रेजिस्टेंस लाइन ब्रेकआउट दिया है तो वो ऊपर ही जाएगा. तो आपको जो फोकस करना है वो पूरा का पूरा, यू हैव टू फोकस ऑन द PCR पार्ट. ठीक है, PCR चेंज एंड सिर्फ ये कॉलम. दिस इज ऑब्वियसली पुट एंड कॉल का मिलाकर, और मेजरली ATM से लेकर OTM के अंदर का. ठीक है, इनफैक्ट यहाँ भी आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हो. तो आई यूजुअली फोकस ऑन टॉप 7, मतलब यहाँ से यहाँ तक का. ठीक है, ये इन द मनी है पुट साइड के लिए. दिस इज ऑब्वियसली इन द मनी एंड दिस इज द OTM. ठीक है, ये ITM है. ठीक है, ये ATM है और ये OTM है. तो आपको जो फोकस करना है ATM, OTM और ITM तीनों में, बट सिर्फ और सिर्फ ये इतना, और ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ से OTM से लेकर ATM वाले. क्योंकि ये अगर मूव कर रहा है, ये अगर मूव कर रहा है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि कॉल राइटर्स जो है वो निकल रहे और पुट राइटर्स एक्टिव हो रहे, मतलब क्या हो गया, जो कॉल राइटर्स है वो निकल रहे, वो एग्जिट कर रहे, और पुट राइटर्स एक्टिव हो रहे, तेजी हो रही है. एग्जैक्टली और यहाँ पे उल्टा हो रहा है तो मंदी हो रही है, मतलब पुट राइटर्स एग्जिट मार रहे. इनफैक्ट आप कॉल राइटर्स को भूल ही जाओ, सबसे ज़्यादा फोकस रखो पुट राइटर्स पे. क्योंकि एज आई सेड मार्केट 4% गिर सकता है, लेकिन 4% बढ़ने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर को आना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा हम 25% से टैक्स रेट 20% कर रहे हैं. ठीक है, तब जाके वो बढ़ेगा. लेकिन सिर्फ एक छोटा सा पाकिस्तान ऐसा उसको बॉम्ब भी डाला ना तो 4% गिर जाता है. मतलब अब नहीं गिरता, बट पहले गिर जाता था. अब तो हम और HL पे लॉन्ग जाएंगे कि पता है ये अभी गिरा है, ये मोदी जी भेजेंगे 2-4 पाकिस्तान की सिटीज़ को तो उड़ा ही देंगे. या हाउ मच टाइम वी हैव? 5:30. वी कैन टेक क्वेश्चंस एंड I'll cover more. हाँ, Q&A questions. 5:30 हो गया. या हेलो. हाँ हाँ, एक सेकंड. ये होटल या ओके. PCR का वो इम्पैक्ट वही रहता है कि यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे तो आपको ये जो है PCR, ये जो रहेगा दिस शुड बी इन द जोन. ATM का जो PCR है, ओके, हाँ, गुड क्वेश्चन. ATM का जो PCR रहता है दैट शुड बी इन द रेंज ऑफ पॉइंट, आई विल से 7 to 1 point. शिट, कहाँ गया वो? या सो ये जो PCR रहेगा वो 0.7 से इट शुड बी इन द रेंज ऑफ 1.1. ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है, चेंजेस वेरी फास्ट. मतलब बैंक निफ्टी के 100-200 पॉइंट तो ऐसे ही स्ट्राइक फटाफट चेंज होते रहते. तो आपको जो ये चेंज ट्रैक करना है, इट शुड बी ओके. वन मोर थिंग, बैंक स्पेसिफिकली फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडर्स. ठीक है, इफ यू आर यूजिंग just just a second. Cumulative voice changes. Sorry. Yeah. Specifically for Bank Nifty traders or the index traders. ठीक है, इंडेक्स ट्रेडर्स को जो की PCR देखना है, यू डोंट हैव टू सी द PCR ऑफ
इंटायर ऑप्शन चेन या जो बोलते हैं ना कंटिन्यूस स्ट्राइक चेंजेस, आप सिर्फ सुबह का हाफ एन आवर का रेंज लो, सुबह हाफ एन आवर बैंक निफ्टी कहाँ है ट्रेड हुआ है, ठीक है, एंड सिर्फ वो डेटा स्ट्राइक्स यू जस्ट पुट इट हियर, ठीक है, सिर्फ वो डेटा स्ट्राइक्स, जैसे समझ लो आप लेट्स से फॉर let me just quickly do this 30 minutes, okay, let me just open it. Let me just convert it to 30 minutes and ये निफ्टी बैंक हो गया, ओके, दिस इज द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। अभी ये आपका सुबह 9:15 से 3:30, 9:15 का डेटा है, आधी घंटे का, ठीक है। अब कोई मेरे को बताएगा इसका रेंज कितना है? फर्स्ट आधी घंटे का ओपन हुआ, हाई था 934 एंड लो था 512, ओके, 930 एंड मतलब ऊपर जो हो गया 951, ओके सॉरी टेक दिस, व्हाट वाज द लास्ट ट्रेडिंग डे? 21st ना, 21st में ऊपर 51,900 एंड नीचे में 51,500, सो लेट्स से 51,900 एंड नीचे में 51,500, ठीक है। आई यूजुअली प्रिफर टू टेक 3 स्ट्राइक्स, बट यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बड़ा है, सो विल बी टेकिंग 4 स्ट्राइक्स, ओके। सो यू हैव टू गो हियर, सेलेक्ट द स्ट्राइक्स, कवर टू 36 July, you have to select the strikes, clear on, and 51, 500, 600, 700, 800 and 900. We'll avoid 900 because 900 में ज़्यादा ट्रेड नहीं हुआ है, okay, and let's do this, okay. अब यहाँ पे it will give you a clear indication, but it will give you indication after I'll say 10:30, 11, okay. 10, 10:30 के बाद आपको एक इंडिकेशन देगा कि how the day will be planned up. Anyone who have done market profile here? मार्केट प्रोफाइल के बारे में किसी को पता है? ओके, तो ये मार्केट प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट हाफ एन आवर्स के कैंडल बनते हैं उसमें, एंड फर्स्ट 2-3 कैंडल के बाद दे ट्राई टू फिगर इट आउट कि हाउ द मार्केट विल बी, कौन सा शेप बनेगा मार्केट प्रोफाइल्स में। इट इज़ यूजुअली द शेप्स, जो कैंडल्स बनते हैं वो बी शेप, पी शेप, ऐसे शेप्स होते हैं, तो वो शेप कैसे बनेंगे, तो एटलीस्ट उसका बहुत बेसिक चीज़ें बता देता है कि वो ट्रेंड कैसे मूव करेगा। तो अगर आपको यहाँ दिख रहा है वेरी सिंपल कि अगर आपको ये रेड में भी दिख रहा है आफ्टर 11:30, 10:30, 11:30, तो आप ये समझ लो मार्केट विल बी ऑन अ प्रेशर साइड दैट डे, ओके। 10:30 के बाद अगर आपको ये लाल दिख रहा है, लाल कब दिखेगा? व्हेन देयर इज अ मोर ऑफ अ कॉल सेलिंग हैपनिंग मार्केट में, पीसीआर डेटा इज गोइंग डाउन एंड कॉल सेलिंग इज अग्रेसिवली हैपनिंग, तो कॉल्स आर एग्जिटिंग। बट ये आपको कौन से स्ट्राइक्स पे करना है? सुबह के जो आधी घंटे के स्ट्राइक्स है, क्योंकि जो इंट्राडे ट्रेडर है या जो बड़े ट्रेडर्स हैं उनके उस आधी घंटे में जो इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं उन्होंने उस आधी घंटे में पोजीशंस सिग्निफिकेंटली बन गई होगी, और हाउ दे आर बिहेविंग ड्यूरिंग द मार्केट टाइम्स, दैट इज फार मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन सीइंग द एंटायर चेन, ओके। सो यू हैव टू फोकस हियर, एंड ये प्राइस OI P माइनस C डिफरेंस टेबल, मतलब पुट माइनस कॉल का जो डिफरेंस है वो कितना चल रहा है, दिस होल डिफरेंस, एंड ये 2 डिफरेंस है, एक इंट्राडे डिफरेंस, एक कैरी फॉरवर्ड का डिफरेंस,
एंड दिस इज व्हाट वी हैव यूज्ड अ 30-minute चार्ट्स, 30 मिनट के टाइम फ्रेम, 9:30, 10, 10:30, ऐसे 30 मिनट का टाइम फ्रेम वी यूज। ओके, तो इसमें अगर आपको यहाँ पे लाल भी दिख रहा है, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग, ये लाल भी दिख रहा है ना, मतलब क्या हो गया, प्रेशर, मार्केट उस दिन प्रेशर में रहेगा। ये हरा दिख रहा है, मतलब मार्केट विल बी ऑन मोर ऑन द अपसाइड फॉर दैट पर्टिकुलर डे। अगेन दिस इज एन इंडिकेटर, ठीक है। हमारे पूना में जब भी कोई बाइक वाला राइट इंडिकेटर देता है, इसका मतलब वो लेफ्ट जा रहा होता है, ठीक है। आई एम श्योर अहमदाबाद में भी ऐसा ही ट्रैफिक सेंस रहेगा, इट विल नॉट बी एनी डिफरेंस। तो मार्केट भी वैसा ही है, बहुत बार आपको राइट इंडिकेटर देख के आकर लेफ्ट चला जाता है। स्पेसिफिकली जो पिंक कलर की स्कूटीज होती है उसमें तो ये बहुत ज़्यादा रहता है। आई एम नॉट बिकमिंग बायस्ड, ठीक है। या तो कमिंग बैक, सो बहुत बार होगा जहाँ ग्रीन रेड कर रहा होगा, तो वो चकदे वाला लास्ट सीन है, इसका हॉकी स्टिक राइट है, इसका पाँव लेफ्ट है, तो यू हैव टू यूज दैट जजमेंट दैट टाइम, ठीक है। या कोच को उस समय क्या करना है, कोच को फ़ोन करो, तो जीतू भाई को फ़ोन करो एंड पूछ लो, मतलब वो कोच को देखती है ना, वो हॉकी कीपर है। सो दैट मूवी टीचर्स यू कि जब आपको ऐसा मार्केट इंडिकेट नहीं कर रहा है, तब अपना दिमाग मत लगाओ, तब सीधा कोच को फ़ोन करो क्या होने वाला है मार्केट में। बट अगर इतना क्लियर डायरेक्शन मिल रहा है, सो ऑल यू हैव टू फाइंड अ good shorting opportunity, a good opportunity to go long in the put side. Yeah. Market wise participation in OI, yeah. So can you help in interpreting that? So basically I have seen the last 5 instances wherever the FI position is short by more than 80%. At that particular series, the Nifty has rallied to 3 to 4%. Is my analysis correct? See, I'll tell you, आप उतने डिटेल में मत जाओ, मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता, और स्पेसिफिकली एफआईज का डेटा हैज़ जीरो रिलेवेंस बिकॉज दे माइट बी, सी व्हाट आई विल टेल यू, हिंडनबर्ग के केस में, अडानी वाले जो केस में था, हिंडनबर्ग डिडंट इवन शॉर्टेड वन सिंगल कॉन्ट्रैक्ट हियर, दे शॉर्टेड द बॉन्ड्स इन यूएस, ठीक है। So FIs might be doing some sort of spreads. In my previous job, way back in 2008, I'll tell you, I was working with JP Capital. We used to trade across the globe, all the markets. We used to trade Dow and copper. Dow being an industrial index, US का सबसे बड़ा index, and copper being an industrial commodity. So both have a correlation. Okay. So we used to trade that correlation. So we used to go long in one and short in another. Similarly, we used to go trade in copper and crude. Copper and crude both being an industrial product, they have a correlation. Gold and silver, heating oil and crude, जिसको crack spread and frac spread बोलते हैं, naphtha oil and heating oil का spread बनाकर. So these FIs, they usually don't have one single side open position. They might be long US, short China, or other way around. By trading some correlation, and for them, when you have a $1 billion fund, आपको सी जो बाइक पर होता है ना, सिग्नल पे सबसे आगे, उसको ही सबसे ज़्यादा घाई रहती है, वो मोबाइल में भी बात कर रहा होता है, जाना कहाँ है उसको भी पता नहीं है, शायद जाकर वो चाय पिएगा दोस्तों के साथ बैठकर, लेकिन वो मोबाइल पे भी बात कर रहा है, इज रिस्किंग हिज लाइफ, बाइक सिग्नल भी तोड़ेगा, बट जो पीछे मर्सिडीज़ में बैठा होगा ना, वो इसी में आराम से बैठा रहेगा, इनफैक्ट उसके तो 1-2 टीवी लगा हुआ रहेगा, वो टीवी भी देख रहा होगा। सो व्हेन यू आर हैविंग अ $1 billion plus fund, see most of these funds are like $100 billion, so they don't want to generate like 60%, 50% kind of CAGR. For them US में 6% CAGR है, 6% इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है, मतलब वो भी बॉन्ड का तो 3-4% है, उनको 12% इज मोर देन इनफ, फॉर सम पेंशन फंड इज मोर देन इनफ। ओके, एवरेज में भी यूएस में एवरेज हेज फंड मैनेजर जनरेट्स 12 to 15% कैगर रिटर्न। ओके, एक्सेप्शनल जो है वो 60% रिटर्न जनरेट किया है आज तक, जिसको हम मतलब वी बेंचमार्क्ड इट, जिम सिमॉन्स। ओके, वॉरेन बफेट जनरेट्स 30-35% कैगर रिटर्न। ओके, बट इंडिया में लोगों को 1 लाख रुपए पे 5,000 रुपये दिन का कमाना है, एंड जॉब भी छोड़नी है, और बॉस को भी हायर करना है। ओके, तो आप वो डेटा कैन बी वेरी मिसलीडिंग बिकॉज वी आर सीइंग ओनली वन साइड ऑफ द जिग्जॉ पजल। FI might be long here, short China,
or maybe short here, long China. So they might be looking some arbitrage opportunity between Brazil or India. Okay. So my We used to trade, I'll tell you, we used to trade Tokomo, that is Tokyo Commodity Exchange, and US. तो बेस्ट पार्ट इज अबाउट टोक्यो कमोडिटी एक्सचेंज इन यूएस इज आप टोकोमो में अगर गोल्ड लॉन्ग हो और यूएस में शॉर्ट हो तो आपको एक ही मार्जिन मतलब स्प्रेड का ही मार्जिन देना है. जैसे हम यहाँ पे स्प्रेड ट्रेड करते हैं ना, तो टोकोमो दो एक्सचेंज के बीच में स्प्रेड मार्जिन लगता है. क्या आप सिंगापुर में वी यूज्ड टू ट्रेड सिंगापुर एलएमई में लॉन्ग और सिंगापुर शॉर्ट. सिंगापुर में आयरन ओर ट्रेड होता था, तो मैंने मेरा करियर एज ए स्प्रेड ट्रेडर चालू किया है. तो नॉट आर्बिट्राज बट अ स्प्रेड ट्रेडर, स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज बोलते हैं उसको. आर्बिट्राज है बट इट्स अ स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज आल से, और इट्स अ रिस्क रहता है. दिस नो वेन एवर वी सी आर्बिट्राज इट मीन्स लाइक सम मैंने यहाँ से 20 रुपये में मैंगो खरीदा या यहाँ से समथिंग आई बॉट इट चीप एंड आई सोल्ड इनटू सम अदर मार्केट एक्सपेंसिव. इट्स नॉट ऑलवेज द केस. इट कैन बी अ स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज और अ मीन आर्बिट्राज. क्या तो प्योर आर्बिट्राज तो मार्केट में मिलता नहीं है कि जहाँ पे आप मैं अहमदाबाद आर्बिट्राज मीन्स आई एम बाइंग समवेयर चीप एंड सेलिंग समवेयर एक्सपेंसिव. सो दिस नो प्योर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एनीवेयर इन द मार्केट, बट यू गेट मेनी स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज एंड मीन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज जहाँ थिंग्स विल रिवर्ट बैक टू मीन. से क्रूड इंडिया एंड क्रूड यूएस, अगर हाइपोथेटिकली क्रूड यूएस में $80 चल रहा है बैरल पे एंड लेट्स से इट्स अ लीटर, वहाँ पे गैलन में है, लेट्स से इट्स अ लीटर पे, तो इंडिया में 1 लीटर कितना कॉस्ट होना चाहिए क्रूड का? 80 रुपीज़ टेक्निकली. ठीक है, अगर वो 85 हो जा रहा है, ठीक है, देन यू गेट अ सम सॉर्ट ऑफ अ जोग्राफिकल आर्बिट्राज वेयर यू कैन शॉर्ट इंडिया बिकॉज इंडिया इज एक्सपेंसिव एंड यू कैन गो लॉन्ग इन यूएस बिकॉज यूएस इज चीप. टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स. सर या जैसे मतलब इफ यू टॉक अबाउट लास्ट 10 years जनरली बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म द निफ्टी, बट इफ आई टॉक अबाउट लास्ट 1 year like you know it is not outperforming, even it is underperforming. So can we say that like in next 2 years or like it will again outperform the nifty statistically, like because the beta of bank nifty is you know outperforming. Currently I don't trade Nifty and Bank Nifty का spreads, so I really don't care whether who's outperforming or who's underperforming. All I see is अगर कोई स्टॉक चल रहा है तो I'll be long on that. ठीक है. आप भी I'm sure आप statistical या arbitrage नहीं करोगे कि निफ्टी खरीद के बैंक निफ्टी बेचने का, तो it will not impact us. So you know, we never to get into why. अगर if you know this so sure कि अगर ये है trend तो hopefully it will continue. So better to do is अगर आपको निफ्टी में तेजी लग रही है, आप बोल रहे हो बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, शुड बी आउट परफॉर्म लाइक शुड बी आउट परफॉर्मिंग ना, तो अगर आपको निफ्टी में तेजी जिस दिन लग रही है उस दिन बैंक निफ्टी खरीदो. ओके, सो फोकस ऑन व्हाट रादर देन बाय. या बट my next question would be like the lot size of nifty and bank nifty are, you know, it's 15 and 25. Earlier it was 50 and now it is 25. So how should I, you know, whether I need to consider two So go lots down of to the nifty and two. okay, if you want to do portfolio level trading, ठीक है, सो यू कैन नॉट ट्रेड वन वे. सिंपल वेज आप दोनों का 10-10 लाख रुपए का वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट ले लो. सो फॉरगेट अबाउट दैट. निफ्टी का 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए जहाँ भी आपका राउंड ऑफ नंबर बन रहा है, या जो भी जैसे हिंडाल्को और नैल्को में कोई ट्रेड करता है या हिंडाल्को एंड टाटा स्टील में ट्रेड करता है, सो या पेयर ट्रेडिंग जो आप बोल रहे हो, तो पेयर ट्रेडिंग का सबसे सिंपलेस्ट वे है कि आप दोनों का सेम नोशनल अमाउंट का ट्रेड बनाओ कैश मार्केट में कि फ्यूचर में भी अगर दोनों का एक का 3 लॉट में बन रहा है, एक का 4 लॉट होगा, तो उस हिसाब से तो वैल्यू वाइज आपका मोटा मोटी दोनों सेम आ जाएगा कि 3-4 10 लाख 7 कोई 7 लाख का होगा तो 7 या 21 और ये 9 लाख का होगा तो आपको इनफैक्ट वो 4 लॉट और 5 लॉट में मैचअप हो जाएगा. ठीक है, तो एक तो वो है. दूसरा आप उसका कोरिलेशन निकालो, उनका कोरिलेशन कितना है, कोरिलेशन को वरायंस जिसको बोलते हैं, और को वरायंस के बेसिस पे यू ट्रेड. ओके. और सर दूसरा एक क्वेश्चन है, जैसे वीवेप जो हम यूज़ करते हैं वो जनरली इंट्राडे में होता है, तो इज देयर एनी वे लाइक आई कैन यूज़ वीवेप फॉर डेली चार्ट? Absolutely, you can use Anchor VWAP for daily chart. Okay. Anchor VWAP is absolutely amazing, and Anchor VWAP specifically अभी बता रहा हूँ, Anchor VWAP is very effective. 3 तारीख पे आप एंकर करके अब जो भी आपके चार्ट्स बनाने हैं एंकर VWAP में, वो 3 तारीख पे एंकर करो या 4 तारीख पे एंकर करो. You can use both. Both will give you very different view, but it will give you how the fresh money has moved. Expiry when we short strangle करते हैं,
Now the risk is gap opening and gap down. The major risk is this. तो उसका कोई By the wings. okay. By the calendar wings. calendar spread या ऐसा कुछ something. हाँ, Yeah. by Okay. the wings या थोड़ा outer वाले OTM आप buy करके जाओ. If you are carrying anything. Okay. Fine. Yeah. Thank you. So, ladies and gentlemen, as we come to the conclusion of this 2 days enriching national conference on capital market, I, CA Chetan Jagatia, chairperson of the committee, extend my heartfelt gratitude to each one of you for being here and coming in large numbers. Hearing positive feedback from many of the members, it gives me immense satisfaction that all our hard work has not gone in vain and we have been fruitful in doing what we could do. I would like to extend a special thank you to Ashish Baidi sir from Pune for his insightful session on open market analysis. Thank you sir for coming and attending the 2 days conference also. So one announcement that I want to make, that if anyone wants to do the certificate course on fundamental and technical analysis, it is available at the ICI courses. So there we will have a detailed course available, those who want to do that. So we have been honored to receive many huge numbers coming from outside Ahmedabad also, such from Gandhidham, Bhavnagar, Vadodara, Pune, and that keeps us motivating, and we will be doing more conferences and more seminars on capital market going ahead. We have a whole year. As we sign off, I assure you that we'll be organizing more programs. Once again, thank you all. Thank you for your time. Thank you.